स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस व्हाट वी हैव स्टडीड कि कोविड-19 क्या होता है। कोविड-19 एक बीमारी है which caused by the virus called SARS-CoV-2 virus and it was first originated in your Wuhan city of China. So कोविड-19 का क्या मतलब है? कोविड-19 की डिजीज का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, ये किसने दिया था? द नेम फॉर दिस कोविड-19 वाज गिवन बाय WHO ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सब लोगों ने आप लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को ये सब के बारे में जानकारी है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी ट्रुथ एंड मिथ्स के ऊपर रिगार्डिंग कोविड-19। कौन कौन सी सच्चाई हैं या कौन कौन से इसके ऊपर मिथ्स हैं वो हम समझेंगे। So as usual, before starting the class, I would like to show some videos because there are a lot of myths which cannot be covered in 1 hour lecture. So some of them will be studying in the slides or some of them will be seeing by the videos. So we'll watch some couple of videos before starting this particular lecture. So I'll just play down these videos for you guys. Watch it very carefully because it contains so many important and vital information. So I'll just play the videos. Please confirm, anyone from the student confirm whether you can see the video screen or not. Anyone from the student can confirm, आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes sir. आ रही है sir. Okay. I'll just play down the video. Watch it very carefully. Okay. With so much attention on the COVID-19 pandemic, there is a lot of information going around in the media and on the internet. And that means there are lots of chances for people to get incorrect information. We wanted to take a few minutes to share some of the myths and facts we have heard. Myth number 1. Study participants will be exposed to SARS-CoV-2 or COVID-19 as part of the study. False. That type of study design is known as a challenge study. The vaccines and antibodies that we are testing are not made with the real virus, so they cannot cause an infection or illness. We are 100% sure that a vaccine or antibody cannot give anyone COVID-19. Our studies are called randomized, blinded, and placebo-controlled studies. That's a mouthful. I'll try to explain it to you. First of all, not everyone in our studies will get the vaccine or antibody. Some people will get a placebo. A placebo does not contain the study vaccine or antibody. Placebos are usually sterile salt water. Using a placebo for comparison in a study is what makes the study placebo-controlled. When someone joins one of our studies, whether they get the vaccine or the placebo is completely random, like flipping a coin or rolling dice. This is what makes the study randomized. The same would be true for someone in an antibody study. Whether they will get the study antibody or placebo is completely random. We have no say in what people get. In fact, the study team won't even know what each participant gets, and neither will the participant themselves. This is what makes the study blinded. Almost everyone involved in the study, even study staff members, are blinded to what the participants get. Don't worry though, everyone will eventually find out. Depending on how the study goes, it could take a few months to a couple of years. Randomized, blinded, placebo-controlled studies are the best way to find out if a study vaccine or antibody works. Here's why. The people who join our studies are often more likely than most other people to be exposed to the virus. This is just by simply living their daily lives. They are more at risk of getting the virus because of things like the kinds of jobs they have, their health, age, housing, and access to healthcare. Unfortunately, we know that some people in our studies will get sick with COVID-19. We will be keeping track of who does.
When the study is far enough along, we will see if there is a big enough difference between how many of those people got the vaccine or antibody and how many got the placebo. If there are fewer people who get sick in the group that got the vaccine or antibody than in the group that got the placebo, then we will know that the vaccine or antibody works. Our goal is always to keep people safe and healthy, but in a pandemic, we know that there is always a chance that people will get sick. But because of randomized, blinded, placebo-controlled studies, we will never have to expose people to the virus on purpose to find out if the study vaccines or antibodies are working. Myth number 2. Joining a preventive COVID-19 vaccine or antibody study is like being a guinea pig. False. Unlike guinea pigs, people can choose whether or not they want to join a study. If a person thinks they are interested, they can talk with the study staff. All of the participating study clinics take great care to make sure people understand the study fully before they decide whether or not to join. It is critical that participants have all of the information about the study so they are able to make an informed decision about participating. Study staff will give people plenty of time to ask questions, and people can talk with their friends, family, and other people they trust before they make a decision. This process is called informed consent, and it ensures that they understand all of the risks and benefits of being in a study. Volunteers are also reminded that they may leave a study at any time without losing any of their rights. Our studies follow U.S. federal regulations on research, as well as international ethical standards and any other requirements of the countries where our research is being done. There are rules for doing research, and we are committed to following them. Myth number 3. Western scientists are unfairly using people in developing countries to test preventive COVID-19 vaccines and antibodies. False. In order to find a vaccine or antibody that works in all kinds of people, it is necessary to evaluate them in all kinds of people. This is especially true for groups of people that have been hardest hit by the COVID-19 pandemic. Protecting the well-being of people who join our studies is a huge responsibility. We do our best to follow the highest ethical standards. We do these studies in collaboration with local scientists, researchers, and community representatives. There is oversight by ethics and regulatory groups in each country. Many studies are done in sub-Saharan Africa, Asia, Europe, North America, and South America at the same time, and we follow the same procedures and international standards no matter where the study takes place. We want to include people who are more likely to be exposed to the virus and COVID-19 by living their daily lives. This means that we do our studies in areas that have been hardest hit by the pandemic. Myth number 4. A person has to be infected with SARS-CoV-2 to be in a preventive COVID-19 vaccine or antibody study. False. The vaccines and antibodies being tested are products designed to prevent someone from getting sick. So we want to enroll volunteers who do not have COVID-19. There are other scientists that are doing studies of treatments that doctors could use for people who already have COVID-19. Fact number 5. Licensed vaccines have an excellent track record of safety. True. While it is true that vaccines often have side effects, just like all other medical interventions, the side effects of a vaccine are typically temporary, and people describe them as mild to moderate. These side effects can include having a sore arm where the injection was given, a low fever, chills, a headache, nausea, feeling tired, or muscle aches and pains. The side effects usually go away after a couple of days. A common myth is that vaccines can cause autism. There have been many studies that have proven this is not true. There was a British doctor who published study results linking vaccines and autism, but it was later discovered that his data was fake. Because of this, he was stripped of his license to practice medicine. Vaccines are one of the top public health tools we have, second only to having a clean water supply. They help to protect not only the person who gets vaccinated, but the community as well. Myth number 6. COVID-19 is like the seasonal flu. False. Some people who get SARS
आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आवाज आ रही है। The virus that causes COVID-19, do have flu-like symptoms. COVID-19 currently has a higher death rate than the flu, and scientists think that COVID-19 is more contagious than the flu. In the United States, the Centers for Disease Control recommends that everyone aged 6 months and over get a flu shot every year. Fact number 7. You can give SARS-CoV-2 to someone even if you do not have symptoms. True. Scientists have found that people who have SARS-CoV-2 but have no symptoms can still pass the virus to others. Having the virus but having no symptoms is called being asymptomatic. In fact, people who have the virus seem to pass the virus to others most often before they show any sign. Myth number 8. The prolonged use of medical masks causes oxygen deficiency or CO2 intoxication. False. Wearing a mask for a long time does not cause oxygen deficiency. When people wear masks properly, carbon dioxide does not build up to make them droplets from your mouth and nose to others. If your mask feels damp, you should change it and wear a fresh one. Scientists recommend that people wear cloth masks, including homemade ones, to help prevent giving the virus to other people. Myth number 9. You can believe everything you read on the internet about preventing COVID-19. False. There is lots of information on the internet, and lots of it is not true. Let's clear the air about some of the rumors we have heard. First, gargling with warm salt water can make a sore throat feel better, but it has no effect on SARS-CoV-2. Vinegar doesn't do anything either. Next, although garlic is known to be a healthy food that has some antimicrobial properties, there is no evidence that eating garlic protects people against COVID-19. Drinking alcohol also does not protect against COVID-19. And drinking too much alcohol can be dangerous. How about the weather? Being in hot or cold climates does not protect you against COVID-19. The virus spreads in all climates. And finally, inhaling steam from boiled eucalyptus leaves might feel good, but it doesn't get rid of COVID-19. Cleansing yourself or your environment with sage, cedar, and other smudges, drinking traditional medicinal teas, and steaming with cedar and other medicines are things that may be beneficial for your environment and your spiritual and physical well-being. But these practices don't get rid of COVID-19. Check with your trusted traditional healer and your medical doctor to identify the best practices to ensure your health and well-being. As you can see, there are many myths around SARS-CoV-2 and COVID-19. We encourage you to do some research to find out more, and don't assume that everything you read online is a fact. Look for trustworthy sources like your doctor, your local health department, the United States Center for Disease Control and Prevention, and the World Health Organization. You can also check out our website at www. आप लोगों ने ये वीडियो देखा जिसके अंदर कुछ अफवाहों के बारे में बताया गया था कि जिस तरह से ये अफवाहें थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गार्लिक अगर खाने में डालते हो, अगर लहसुन का ज़्यादा उपयोग करते हो तो उससे आप कोविड से बचोगे। तो ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स जो है व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो आप लोगों से यही है, वीडियो में यही बताया गया है कि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन आती है पहले आपको उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये किधर से आया है, क्या ये सरकार के द्वारा जारी किया हुआ कोई आदेश है या कोई उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है या स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है या फिर WHO ने बताया। ये 3 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हमको बातों पर विश्वास है। पड़ोसी वाला कुछ बता रहा है तो हमें एक बार चेक जरूर करना है कि ये वो सच है या नहीं है। ठीक है, तो अभी एक वीडियो और दिखाता हूँ जिसके अंदर
और जो इंडिया के अंदर जो कॉमन मिथ्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अपन एक वीडियो और देखेंगे, देन विल स्टार्ट स्टडिंग आवर द स्लाइड्स। ओके, अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। एक वीडियो और देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ना। In this video, we will look at the top 5 myths about the coronavirus. Myth number 1. The virus will die off when temperatures rise in the spring. Well, yes, some viruses such as the cold and flu viruses do spread more easily in colder months, but that does not mean that they stop entirely when conditions become warmer. As it stands, scientists do not know how temperature changes will influence the behavior of coronavirus. Myth number 2. Coronavirus is the deadliest virus known to man. This statement is untrue. COVID-19 is only fatal for a small percentage of population. In a recent report, the Chinese Center for Disease Control concluded that 80.9% of the COVID cases were mild. The WHO also reported that around 80% of the people will experience a relatively mild form of the disease, which will not require specialist treatment in a hospital. Although coronavirus does appear to be more serious than influenza, it is not the deadliest virus that people have faced. Others, such as Ebola, have higher mortality rates. Myth number 3. Cats and dogs spread coronavirus. At present, there is no evidence that animals or pets such as dogs and cats can be infected with the new coronavirus. However, there has been a case report of a cat being tested weekly positive for coronavirus after contracting it from his owner. But it is always a good idea to wash your hands with soap and water after contact with pets. Myth number 4. Antibiotics and home remedies kill coronavirus. Antibiotics can only kill bacteria. They are not effective against viruses. At present, there is no evidence that any home remedy can protect against COVID-19. The best approach is to adopt a good hand washing regime and to avoid crowded places. If there is anything that can protect you from coronavirus, is your own immunity. Watch our video series on the topic of immunity and healthy lifestyle changes you can do to boost your immunity. Myth number 5. The virus was engineered by China in a lab. Despite thousands of internet rumors, there is no evidence that this is the case. In fact, a recent study demonstrates that the virus is a natural product of evolution. Some researchers believe that coronavirus may have jumped from pangolins to humans. Others think that it might have passed to us from bats, which was the same case for SARS. Scripps Research Institute, which is an American medical research facility, said that the coronavirus is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. We can firmly determine that coronavirus originated through natural processes. However, Chinese authorities have been blamed for allowing the virus to spread as far as it did by suppressing the news about the initial spread and downplaying its transmission. On December 31, the Wuhan government made its first official announcement that 27 people had fallen ill to a mysterious virus that appeared from a seafood market, but it denied that the virus can be transmitted from human to human. This was a crucial factor which would have differentiated more easily controllable illnesses from full-blown epidemics. It wasn't until January 20, 3 weeks after Wuhan's first announcement, that the human-to-human transmission was confirmed. Wuhan's mayor later took responsibility for the delay and said his hands were tied by the central party's rule. After I receive information, I can only release it when I'm authorized, he said. A national law dictates that the local governments can only declare an epidemic after receiving approval from the Chinese Communist Party. China's social media pages have been flooded with angry citizens
criticizing officials for failing to contain the initial outbreak in the lockdown city. Much of the anger was because authorities initially suppressed the information of the outbreak. What are your thoughts about this topic? Let's discuss in the comments. ओके, तो आप लोगों ने ये 2 वीडियो देखे, इसके अंदर कुछ ट्रुथ एंड मिथ्स बताए गए थे कोविड-19 के बारे में। तो किसी ने ये सुना होगा कि ये जो कोरोना वायरस जब फर्स्ट वेव आई थी तो कह रहे थे कि ये ठंड में ज़्यादा फैलेगा, गर्मी में ज़्यादा फैलेगा। सुना था, नहीं सुना था कि देखो अभी गर्मी आई है तो ठंड में और ज़्यादा जो फैलेगा ये वायरस। तो टेम्परेचर का वायरस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये वायरस जो है, ये जितने जितने इन्फेक्टेड पर्सन जितनी लोगों से सॉरी ज़्यादा सर, मिलेगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज़ आ रही है बेटा? अब क्लियर है आवाज़? यस सर। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो हैं जो सर्कुलेट हो रहे थे जब ये कोरोना वायरस की पैंडेमिक की वेव चल रही थी कि आप लोगों को धूप में बैठना चाहिए, ये करना चाहिए। देखो धूप में बैठोगे तो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, बट कोरोना वायरस से प्रिवेंट नहीं कर पाती। कि कोरोना वायरस जो है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके कांटेक्ट में आता है और वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वायरस घुस जाता है तो बाकी सब चीज़ें व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, मेडिकल साइंस ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन रिकॉर्ड्स नहीं है कि आप अगर ये करोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, धूप में बैठोगे तो कोरोना वायरस नहीं रहेगा, जेब के अंदर एक गार्लिक या प्याज लेके घूमोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। सब अफवाहें थी, कोई इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो अगर आप धूप में बैठते हो तो धूप में बैठनी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे विटामिन डी मिलता है, आपकी बोन्स अच्छी होती है, बट आपको कोरोना वायरस से बचाएगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने र्यूमर सुने थे जब ये कोरोना वायरस की या कोविड की जो वेव्स फैल रही थी थ्रू आउट द इंडिया। ओके, सो विद दिस विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर्स। और पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या और कौन से जो कॉमन मिथ्स हम लोगों ने सुने हैं या सर्कुलेट हुए हैं। तो पहले एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं कि कोरोना जो वायरस है, जो कोविड-19 है, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो एक से दूसरी की बट ट्रांसमिटेबल है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसमिट होती रहती है। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर वायरस SARS-CoV-2 वायरस। द फुल फॉर्म इज योर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये है कि knowing the fact about COVID-19 system, how the virus is passed on, what you can do to stop it, it will help you to protect yourself and your community। आज हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कोविड के बारे में कि हमें पता है ये वायरस फैलता कैसे है। कोई इंसान जो है इन्फेक्टेड है और वो मास्क लगा के नहीं घूम रहा है और वहाँ कहीं जाके छींकता है, कहीं खांसता है या लोगों से हैंडशेक करता है, गले मिलता है या उससे मतलब उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो उससे क्या होगा? ये वायरस उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये चेन की तरह फैलता है वायरस। तो एक इन्फेक्शियस आदमी सारे लोग, जो 100 लोग आसपास खड़े, सबको इन्फेक्ट कर सकता है। एक छींकेगा तो एक छींक से सबको वो बीमार कर सकता है। तो ये वायरस बहुत कंटेमिनियस है और इसको हमें पता है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने आप को। ये सब लोग अपना मास्क लगा के रखें, 6 फीट की कम से कम डिस्टेंस रखें, हाथ को रेगुलरली वॉश करते रहें और अल्कोहल बेस से या साबुन से जिससे भी करें। तो यही प्रिकॉशन है जिससे हम वायरस से बच सकते हैं। There is a lot of misinformation about COVID-19, so it is important to check that the information you come from a reliable source such as WHO or your government health authority। बहुत सारी र्यूमर्स है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट मतलब सोशल मीडिया पे या फिर बाकी जो ब्लॉग्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर फैलाई जाती हैं, तो उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये कहाँ से आई है, कि इसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर रिलीज किए हैं या फिर WHO से हैं या कहीं किसी अनऑथराइज पर्सन ने इसको रिलीज कर रखा है। अब बात करते हैं कुछ कोविड के ऊपर। इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला तो सिम्टम्स एंड सीवियरिटीज़ के ऊपर कुछ मिथ्स हैं, वैक्सीनेशन पे कुछ उसके ऊपर क्या अफवाहें फैली हैं वो देखेंगे, और फिर बाद में फाइनली जो उसका ट्रीटमेंट क्योर करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ अफवाहें। तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो हम उसको देखेंगे। Will most people who get COVID-19 get very sick or die?
क्या ये अफवाह है कि जो लोग को कोविड-19 हो जाता है तो वो या तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। ये अफवाह भी फैली थी बीच के अंदर कि कोविड-19 जिसको हो गया तो उसका बचना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये अफवाह है। Most of the people who get COVID-19 will have a mild form of illness and will be able to recover at home without needing a hospital treatment. तो बहुत सारे जो मैंने आपको बताया ना 80% जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। वो कोविड हुआ तो लेकिन उसकी बॉडी ऑटोमेटिक उससे रिकवर कर जाती है, ठीक है। बाकी जो 20% लोग होते हैं उसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो इसमें आते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो हमें पहले भी सरकार ने बोला है कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना है जब ये पैंडेमिक फैला है। Stay home and call your local authority, health authority for the advice if you have any symptoms of COVID-19. If you have difficulty in breathing, persistent pain in your chest or loss of speech or mobility, call your health provider straight away. अगर आपको कोई तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, चेस्ट में तकलीफ आ रही है, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए या फिर मेडिकल एडवाइस हमें लेनी चाहिए। कैन यू ऑलवेज टेल इफ समवन हैज कोविड-19? क्या मैं ऐसे बैठ के, जैसे मैं हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ कि किसी को कोविड-19 है या नहीं? मैं नहीं बता पाऊंगा, ये अफवाह है। लोग कहते हैं मैं देख के बता दूंगा देखो उसको कोविड है या नहीं। वो छींक रहा है बेचारा कहीं पे, उसको बोलना उसको कोविड है। तो इंसान छींकना एक नॉर्मल एक बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। कि गले के अंदर कोई खराश आ गई है या दिमाग में कोई ऐसे 10 पार्टिकल पॉलन ग्रेन्स या एलर्जन आ गया है, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए बॉडी करती है। तो हेल्दी इंसान भी छींक रहा है तो लोग कहते हैं कि इसको कोविड हुआ है तो इसलिए छींक रहा है। तो ये गलत है। हम देख के नहीं बता सकते कि किसी को कोविड है या नहीं। उसके लिए हमें उसका टेस्ट कराना पड़ता है, RT-PCR। तो क्या कहता है? हाँ, नो, the virus that causes COVID-19 can be in someone's body for up to 14 days before they get symptoms, and some people will have such a mild case of COVID-19 they might not have any symptoms. क्या कह रहा है कि हम देख के तो पता नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर बॉडी के अंदर वायरस चला भी गया है तो आजकल एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने लगे हैं, मतलब उसको कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता, ना फीवर आता है, ना बॉडी में दर्द होता है, ना उसके स्मेल टेस्ट आता है, तो लेकिन तब भी उसके अंदर कोरोना वायरस अंदर बैठा हो। तो हम देख के नहीं पता, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा हम कंफर्म नहीं कर सकते। If you still pass COVID-19 on, even if you don't have any symptoms, that's why it is important that everyone should follow the prevention advice such as social distancing, wearing of a mask, and regular washing of their hand, even if they feel healthy. अगर मान लो मैं कहीं बाहर गया और मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी कोविड के पेशेंट में और मेरे को कोई अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई बुरा, मेरी बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं लग रही, तब भी मुझे मास्क पहनना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि या कोई, हम जो इंडियंस हैं, हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये वायरस फैले हमारे देश के अंदर। तो हमें तब भी मास्क लगाना है और सारी जो प्रैक्टिस हम लोग करते हुए आ रहे 1.5 साल से पहले से, वो हमें आज भी करनी है। Does COVID-19 only affect rich people? जब ये COVID-19 फैलना स्टार्ट हुआ था तब ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा फैल रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जो डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर UK है, जर्मनी है, तो ये थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में एक अफवाह फैली थी कि ये रिच कंट्रीज में ही फैलता है, तो ये गलत बात थी। नहीं, anyone can get COVID-19 regardless of how much money they have. COVID-19 has affected people from all over the world, including people of all background, races, ages and financial status. वायरस जो है किसी का कुछ देखता नहीं, ना वो रेस देखता है, ना उसका रिलीजियस देखता है, ना उसका किस कंट्री से है वो देखता है, ना ये देखता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ये हर इंसान को इफेक्ट कर रहा है जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये अफवाह है। तो अफवाह उड़ी थी बीच में, जब शुरू में जब 2020 में ये कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो अप्रैल में ही सुनने को आया था कि ये वायरस जो है ओनली डेवलप्ड कंट्रीज में ही फैलता है। सो इट वाज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट वाज इट? वाज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड इट वाज ए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब आता है, डज COVID-19 ओनली इफेक्ट ओल्ड पीपल, मीनिंग यंग पीपल डू नॉट हैव टू वरी? ये कह रहा है कि जो COVID-19 है वो सिर्फ और सिर्फ जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हीं को लगता है, मीनिंग दैट यंग पीपल डोंट हैव टू वरी। ये गलत अफवाह है। While COVID-19 can be more dangerous in older people, anyone can get it, including young people, some of whom become seriously ill. पहले शुरू में जब ये कोविड फैलना स्टार्ट हुआ था तो ये अफवाह फैली थी कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होता है, बट
बाद में पता चला कि नहीं, ये यंग लोगों को भी होता है और उससे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग गए थे. While we do not have yet fully understood why some people get more serious symptoms, we do know that young people are more likely to develop serious symptoms if they have certain underlying health condition including obesity, diabetes, cancer or high blood pressure. हमें ये पता चला कि यंग लोगों को भी बीमारी होने लगी. मतलब 30 से लेकर 45 साल के जो लोग होते हैं, यंग है, उससे अभी वो यंग है, बहुत एज में नहीं है, मतलब 50 साल के बाद या 60 साल के बाद हम उसको ओल्ड एज में डालते हैं, सीनियर सिटीजन में बोलते हैं. 60 अबव जो होता है, 65 अबव होता है. तो तब क्या हुआ, लेकिन 30 से 45 साल के जो लोग थे उनके अंदर भी ये बहुत बीमार होने लग गए थे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई पहले से बीमारी, या तो उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, या बहुत मोटे थे, या उनको कोई डायबिटीज जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी हो. अगर किसी को ये बीमारी है तो वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. तो कोविड जो है उन लोगों को ज़्यादा बीमार करता है. ठीक है, तो ये अफवाह है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही बीमार कर रहा था, लेकिन ये यंग लोगों को भी इतना बीमार कर रहा है. लेकिन इस पे कंडीशन है कि अगर उनको कोई पहले से ही कोई बीमारी लगी हुई है. ठीक है. आर पीपल लिविंग विद HIV मोर लाइकली टू गेट सीरियसली? जो पर्सन है, कोई इंसान जिसको HIV पॉजिटिव है, वो तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा इस वायरस से. तो ये भी एक अफवाह है. We are still learning about the risk of developing severe COVID-19 for the people living with HIV. Current evidence suggests that the people living with HIV have a higher risk, but less so than other health conditions, including obesity, severity, asthma, heart or lung problems, stroke, dementia और older age. लेकिन इसमें यह है कि कोविड जो HIV पेशेंट होता है उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट पहले दिया जा रहा होता है. तो ये अफवाह उड़ी थी जिसको HIV है. जैसे आशा किरण होता है, अगर आप आशा किरण जानो जहाँ पर HIV पेशेंट्स को रखे जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे अफवाह फैली थी कि HIV के जो लोग पेशेंट पॉजिटिव हैं उनको ज़्यादा बीमार होने के चांसेस है कोविड से. लेकिन ये अफवाह थी. अगर हम इसको 3 कैटेगरी में समझें, एक तो होता है बिल्कुल हेल्दी इंसान, एक है जो कोई किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसको डायबिटीज़ है, या बहुत मोटापा है, या रक्तचाप की बीमारी है, अगर उसको एक कैटेगरी, उसको दूसरी कैटेगरी का इंसान होगा. तीसरा जो HIV से. तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है वो है सबसे ज़्यादा रिस्क पर जो इंसान जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या डायबिटीज़ लगी हुई है, या उच्च रक्तचाप है, या हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको HIV ज़्यादा, कोरोना वायरस ज़्यादा बीमार कर सकता है कंपेयर टू HIV. HIV वाला थोड़ा बचा हुआ रहता है. क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे चल रहा है. मतलब उसको एंटी पहले ही एक वायरल एंटीवायरल ड्रग पे होते हैं, क्योंकि HIV क्या एक वायरस है, वायरस से होता है ये, तो उसको पहले से ही वायरस को मारने वाली दवाई दी जाती है. तो वो बीच में आएगा. सबसे ज़्यादा बीमार होने के चांसेस तो मोटापा है, हाई उच्च रक्तचाप है. तो इसलिए बोला गया था कि ऐसे लोगों को समाज को बच के रहना चाहिए इससे. ठीक है. और सबसे जो कम चांसेस इफेक्ट होते हैं वो हेल्दी पीपल होते हैं. ठीक है. फिर इफ यू आर लिविंग विद एन HIV, द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी इज टू कंटिन्यू टेक योर एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट. अगर आपको बच के रहना है तो आपको है ना, HIV है किसी को, तो वो इंसान को ये बोला जाता है आप अपनी दवाई लेते रहो पूरे टाइम, इसको मिस मत करो. This will keep your immune system strong so you can deal with the infection. If you are worried about that you might have an HIV, get tested and you start your treatment immediately. Are COVID-19 vaccine safe? ये एक अफवाह फैली थी. अब अपन वैक्सीन की ऊपर बात करते हैं. शुरू में जब वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन आई थी तो लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं लगवाएंगे. आपने न्यूज़ में सुना होगा, खूब न्यूज़ में आया था कि गांव में जा रहे हैं तो गांव वाले मना कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे. सुना था, नहीं सुना था? न्यूज़ में बहुत आया है, पेपर में बहुत आया है. ये सुनी थी अफवाह, नहीं सुनी थी कि लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं. तो वो कह रहे थे कि वैक्सीन सेफ नहीं है. जब स्टार्टिंग में वैक्सीन बन के आई थी, स्टार्टिंग में जब भारत सरकार ने वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया था, तो ये अफवाह सुनी थी, नहीं सुनी थी आप लोगों ने कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उससे हमारी जान जा सकती है. सुना नहीं सुना ये अफवाह? यस और नो? यस सर. तो उसका क्या था स्टार्टिंग में जब आया था सर ना? हाँ बिल्कुल, जब स्टार्ट हुआ था ना वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन डेवलप होके आई थी, कोवैक्सीन आई थी, जब कोविशील्ड इंडिया में अप्रूवल मिल गया था और सरकारी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में ये जब लगने लग गए थे, तब ये अफवाह फैली थी. स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना ही फैली थी कि लोगों ने मना कर दिया था. न्यूज़ में आ रहा था, अखबारों में आ रहा था, मैगजीन्स में आ रहा था कि लोग मना कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं थी. वो कौन लोग मना कर रहे थे? जिनको जानकारी नहीं थी इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में. वो कह रहे थे अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी. तो गलत अफवाह फैल रही थी. क्यों?
उनको जानकारी नहीं थी। क्या कोविड-19 वैक्सीन सेफ है? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन सेफ है, सबको लगवानी है। अगर हमारे देश के अंदर 140 जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 140 के 140 को ये वैक्सीन लगवानी है। Yes, the COVID-19 vaccine currently in use have all been through the rigorous testing and approval procedure to ensure they are safe and effective. भारत सरकार ने अगर इसको अप्रूवल दिया है तो उसके पीछे बहुत रिगरस मतलब बहुत कठिन टेस्टिंग की गई है उस वैक्सीन को देखने के लिए कि वो सेफ है या नहीं है। अगर कहीं भी एक भी मापदंड में अगर वो चूक गया तो उसको वहीं बंद कर देते हैं। वहीं अगर आपने अभी न्यूज़ में सुना हो कि वैक्सीन सेफ नहीं है, कहीं ऐसी सारी मतलब न्यूज़ चैनल्स में सब बोलते हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीन बहुत सेफ है इसको, क्योंकि सरकार के जो साइंटिस्ट है जो सरकार के लिए काम करते वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग करी है। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही कठिन, इतनी कठिन होती है कि उसमें हर एक पैरामीटर एक जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तब जाके इसको अप्रूवल मिला है कि हाँ ये सेफ है इंसानों के लिए। ठीक है, मेनी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स have included people living with HIV and so far the results show the vaccine are safe for the people with HIV. और इसके ऊपर ये भी जांचा गया कि कोई इंसान अगर HIV से ग्रसित है तो उसके लिए भी ये सेफ है, उसको भी लगवानी है। As with most vaccines, some people may experience mild symptom in the days after having COVID-19 vaccination. लोगों के अंदर डर क्यों फैल गया? क्योंकि किसने वैक्सीन लगाया तो उसको बुखार आ गया बहुत तेज, उसकी बॉडी में दर्द होने लगा तो लोग डर गए कि हमें नहीं लगवानी है वैक्सीन, ये हमें बीमार कर रही है। तो ये क्या था, वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को चालू कर दिया। मैंने आपको पहले कल लास्ट क्लास में तो समझाया था, वैक्सीनेशन के टाइप पे पढ़ रहे थे। अगर किसी के अंदर ये बुखार आ रहा है या तो उससे डरने की बात नहीं, अच्छी बात है, ये वैक्सीन तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है। ये तो ऐसा हो उसने पानी लगा दिया हो, नमक का पानी लगा दिया हो, ऐसा बेवकूफ बना दिया तो तुम लोगों को, ऐसे नहीं। तो अगर वैक्सीन से अगर आपको बुखार आ रहा है, थोड़ा सा बॉडी में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें नहीं करना। अगर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा। लेकिन ये एक दिन में चला जाता है, ज़्यादा किसी को होता है मतलब 100 में से 10 लोग कोई है बुखार वखार का प्रॉब्लम रहता है, बाकी 90 जो लोग होते हैं उनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। This can include a sore arm, mild fever और generally feeling unwell. तो वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, लोगों को हाथ में दर्द होने लग जाता है, हाथ दर्द करता है जहाँ वैक्सीन लगाया वो हाथ, या थोड़ा सा बुखार आता है, या फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, उसको वेलनेस फील नहीं आता है कि नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैव had an allergic reaction after being vaccinated, but it is very rare and can be safely managed. अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। वैक्सीन किसी की जान नहीं ले रहा है, वैक्सीन बहुत सेफ है, आपको बचा रहा है इस कोविड से। अगर मान लो आपने वैक्सीन लगा आपको कोविड हो गया तो आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर लिया जाएगा, बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है कोविड का। But I have already been diagnosed with COVID-19, so I do not need to receive the vaccine. अगर किसी को COVID-19 हो चुका है पहले से और वो कहता है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्यों, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को वैसे कोविड हो चुका है, ये गलत है। आपको वैक्सीन तब भी लगवानी है। If you have already had COVID-19, there is an evidence that you can still be benefited with the vaccine. अगर आपको कोविड हो चुका है तब भी जाके लगाओ, आपको वैक्सीन फायदा ही करेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगी आपको। At this time, experts do not know how long someone is protected from getting sick again after recovering from the COVID-19. अगर एक मान लो किसी को COVID-19 हो गया है और वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो चांसेस है वो उसको वापस COVID-19 हो जाएगा थोड़ा समय बाद। ठीक है, ऐसे केसेस आए नहीं है कि अगर मान लो किसी को कोविड हुआ है और वैक्सीन लगा के नहीं लग रहा, उसे रिकवर हो गया और वैक्सीन तब भी नहीं लगाई तो ये 3-4 महीने बाद फिर से उसको कोविड हो गया। वो ये सोच रहा था एक बार हो गई मुझे कोविड, अब मेरे को लगवाने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है तब भी आपको वैक्सीन लगवानी। The immunity sometimes gains from the infections called natural immunity varies from person to person. Some early evidence suggests that natural immunity may not last very long. तो अगर मान लो किसी को कोविड हो चुका है तो उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो बहुत समय तक नहीं रहती, तो उसको बाहर से वैक्सीन लगाने की तब भी जरूरत है। Once I have received the COVID-19 vaccine, I no longer need to wear a mask. अगर मान लो मुझको अगर वैक्सीन लग गई है, जैसे मुझे वैक्सीन लगी हुई है, क्या मुझे मास्क नहीं पहनना चाहिए? मैं मास्क पहनना छोड़ दूँ? मेरे तो वैक्सीन लग चुकी है, मैं बिना मास्क पहने घूम सकता हूँ क्या? बताओ बच्चों, ये अफवाह है या सच है? ये लिखा है ना,
Once I receive the COVID-19 vaccine, I no longer need to wear a mask. जैसे मुझे वैक्सीनेशन लगा हुआ है, तो क्या मुझे बिना मास्क के घूमना चाहिए? बताओ बच्चों, यस और नो? नो सर, नो सर, ना, हाँ, मुझे नहीं घूमना चाहिए। मेरे को वैक्सीन लग गई है, तब भी मैं देखो मैं मास्क लगा के घूमता हूँ। देखो मेरा मास्क अभी है, क्लास ले रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नीचे कर रखा है, अदरवाइज क्लास होने के बाद मैं वापस मास्क लगा देता हूँ। क्यों? वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि मुझे आज़ादी मिल गई है कि मैं बिना मास्क पहने घूमूं। ठीक है, masking, hand washing and physical distancing remain necessary in public until a sufficient number of people are immune. Fully vaccinated people can meet with other fully vaccinated people without wearing mask. अगर मान लो मैं बैठा हूँ और मेरे सामने मेरा कोई और टीचर आता है, प्रोफेसर आता है, वो भी फुली वैक्सीनेटेड है, तब थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं, बट तब भी आज भी हम यूनिवर्सिटी में मास्क लगा के ही बात करते हैं। हमें पता है कि हमारा दूसरा प्रोफेसर जो है वो भी वैक्सीनेटेड है, बट तब भी हम मास्क लगा के ही बात करते हैं, बिना मास्क लगाए हम बात ही नहीं करते। ठीक है, द कोविड-19 वैक्सीन इज अनसेफ बिकॉज इट वाज डेवलप्ड सो क्विकली। लोगों में ये भी अफवाह फैली थी कि वैक्सीन डेवलप होने में 10 साल लग जाते हैं, 10-12 साल लग जाते हैं, लेकिन ये वैक्सीन तो साल भर में ही आ गई। तो ये अनसेफ है, ये सेफ नहीं है। लोगों में ये अफवाह फैल गई, तो तभी तो गाँव के अंदर लोग मना करने लगे, हम तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो ये भी अफवाह है। ठीक है, ये भी अफवाह उड़ी थी, क्यों से अनसेफ नहीं? क्योंकि बहुत जल्दी बन के आ गई, बहुत जल्दी बन के आ गई है। तो मतलब ये इसके ऊपर सही से जांच ही नहीं हुई, यूं नहीं हुई है, और ये ऐसे इसको लोगों को लगवाना स्टार्ट कर दिया। ये गलत अफवाह थी। The authorized vaccines are proven safe and effective. Although they were developed in a record time, they have gone through a same rigorous Food and Drug Administration process as other vaccine, meeting all the safety standard. ये वैक्सीन को डेवलप इतनी तेज करा गया है क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर बनाने पे लग गई थी, और इसको बहुत तेजी से इसकी टेस्टिंग करी गई है। जहाँ टेस्टिंग का जो टाइम लगता था 2-3 दिन में या महीने भर में रिजल्ट आता था, उसको 1 दिन में रिजल्ट निकालने लग गए थे, फटाफट काम करने लग गया इसके ऊपर। नो स्टेप्स वर स्किप्ड, कोई भी स्टेप को यहाँ पर स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, हमारी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए और उसकी टेस्टिंग के अंदर कोई भी स्टेप को मिस नहीं किया गया है। इंस्टेड वी कैन thank the unpredicted world collaboration investment for the shorter time frame on the development of the vaccine. The clinical trial and the safety reviews actually took the same amount of time as the other vaccine. तो इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो मतलब समय लगा है, वो एक तो पहली बात तो रिकॉर्ड है। ये एक उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि किसी वैक्सीन को इतनी जल्दी डेवलप किया गया है। क्यों? दुनिया भर के वैज्ञानिक लोगों ने इसको बनाने में पूरे 24 घंटे काम हुआ है इसके ऊपर। जनरली आदमी 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम किए, तब जाके ये वैक्सीन डेवलप हो गया है। और इसकी कोई भी सेफ्टी एफिकेसी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कहीं पे भी इसके अंदर हम लोगों ने ढिलाई या कुछ बरती हो। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। Are the drugs used in the antiretroviral treatment for HIV effective against COVID-19? ये अफवाह अफ्रीकन कंट्रीज में फैली थी। ये अफवाह क्या थी? अफ्रीका जो है ना, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका है, केनिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, जिम्बाब्वे है, ये वाली जो देखा है ना अपने बगल में जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वहाँ पे ये अफवाह फैली थी कि कोई इंसान अगर एंटीरिट्रोवायरल ड्रग ले रहा है तो वो बचा रहेगा कोविड-19 से। तो ये गलत बात है। There is no currently evidence that the antiretroviral drug used in the HIV treatment can treat or prevent COVID-19. तो ये अफवाह उड़ी थी। ठीक है, क्या अफवाह उड़ी थी कि अगर आप एंटीरिट्रोवायरल ड्रग लेते हो तो आप बचे हुए रहोगे। तो गलत अफवाह थी है। If you are living with COVID HIV, you should continue to take your antiretroviral treatment to protect your immune system. You will also need to follow the general prevention advice for COVID-19, as there is no evidence that antiretroviral treatment for HIV provide any immunity to the COVID-19. ऐसा कोई भी साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि एंटीरिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है HIV का वो आपको कोविड से बचाएगा। ठीक है, आर एंटी मलेरिया ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19? फिर ये हिंदुस्तान में अफवाह फैली कि जो एंटी मलेरिया ड्रग है, या अमेरिका का सुना हो कभी? अमेरिका में एक न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन ले रहे थे। सुना था? जब नया कोविड आया था, अमेरिका में फैल रहा था, तो ये अफवाह आई थी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो कोविड-19 से होने से बचाती है। सुना था नहीं सुना था? इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया था, अमेरिका का जो अभी राष्ट्रपति थे उस टाइम के। सुना था नहीं सुना था न्यूज में? यस सर, सुना था। यस सर। तो ये भी अफवाह आई थी।
लेकिन क्या था, अफवाह नहीं थी, इसके ऊपर कोई मेडिकल और साइंटिफिक हमारे पास एविडेंस नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों इसको ये नहीं कह पा रहे थे कि ये सही है गलत है, क्योंकि क्या होता है, मेडिकल साइंस जो होती है बच्चों, वो सत्य पे चलती है। जब तक आपके पास सामने रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपके सामने प्रयोग नहीं किए जाएंगे, तब तक वो कोई कंक्लूजन पे नहीं। वैज्ञानिक जो होते हैं अफवाहों पे काम नहीं करते, वो सामने अगर आपने एक्सपेरिमेंट करा और उसका रिजल्ट आ रहा है तब उसके ऊपर अपनी जवाब देते हैं। ठीक है, सो देयर इज करंटली नो एविडेंस दैट एंटी मलेरियल ड्रग can treat or prevent the COVID-19. The main clinical trials to find an effective treatment of COVID-19 stopped its investigation into the anti-malaria drug hydrochloroquine in the summer 2020. तो जब हाइड्रोक्लोरोक्विन के ऊपर ये अफवाह उड़ी कि ये बचा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, तो इसके ऊपर जांचें स्टार्ट करी गई। तो समर 2020 में इसको बंद कर दिया गया जांचों को, क्योंकि उसमें से कई एविडेंस नहीं आ रहे थे कि ये इंसान को बचा रहा है। दिस वाज आफ्टर इट फाउंड नो एविडेंस दैट ड्रग कुड प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम needing ventilation or drying or speed up their recovery process. Other trials are currently going on to find an effective treatment against the COVID-19. Can COVID-19 be passed in a sunny or in a warm sunny weather? पहले तो क्या सुनने को आया था, कोविड जो है जब गर्मी आ रही थी उसमें ज्यादा फैलेगा, तो ये भी अफवाह है। ठीक है, कि अगर आप अपने आप को धूप में बैठाए रखो तो आपको कोविड नहीं होगा, तो अफवाह है। लेकिन क्या होता है, अगर ये सनशाइन में अगर आप धूप में बैठे हुए तो आपको विटामिन डी मिलता है, जो आपको क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को और अच्छा बनाएगा। लेकिन ये वायरस को रोक पाएगा, ये भी एक अफवाह थी। कैन हॉट ड्रिंक स्टॉप कोविड-19? जो हॉट ड्रिंक्स होती है तो उससे क्या कोविड-19 बचता है? तो ये भी अफवाह है कि कोविड-19 जो है को हम हॉट ड्रिंक से नहीं रोक सकते। Should I use a strong disinfectant to clean my hand and body to protect myself? COVID-19 लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा strong disinfectant यूज़ करो। अरे ज़्यादा strong लोगे disinfectant तो आपकी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी, वो डैमेज हो जाती है। तो ये भी अफवाह है कि लोग कहते थे कि आप 5-6 घंटे में 2-3 बार हाथ धोते हो, तो एक काम करो, स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट से हाथ धो लो, दिन में 3 बार हो गया। लेकिन गलत अफवाह थी ये भी। हम अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे तो हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। हाथ जो हम यूज कर रहे हो ना, तो आपके हाथ की स्किन खराब हो जाएगी। तो आप जो साबुन यूज कर रहे हो या अल्कोहल पे सैनिटाइजर यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा तक सही है। एक अफवाह उड़ी थी कि अल्कोहल कंजप्शन जो होता है वो प्रिवेंट करता है या क्योर करता है कोविड-19 को। आई थी अफवाह कि जो अल्कोहल्स होती हैं वो पीने से, जो पीने वाले लोग होते हैं, वैसे गलत बहुत बैड हैबिट है और हमेशा ये हेल्थ के लिए खराब माना गया कि अल्कोहल पीने से क्या होता है। लोग कह रहे थे कि कोविड से बच जाएंगे या उससे आप क्योर हो जाओगे, तो ये अफवाह गलत थी। अल्कोहल से आपकी बॉडी और कमजोर होती है। ड्रिंकिंग अल्कोहल डज नॉट क्योर और प्रिवेंट कोविड-19। इनफैक्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन वीकन योर इम्यून सिस्टम। अगर जो शराब पीते हैं उनका इम्यून सिस्टम तो और कमजोर हो जाता है, और ज्यादा पीने वाले की तो वैसे ही लीवर और किडनी में इफेक्ट आता है। It has recommended that the older to limit their alcohol intake to stay healthy. Drinking high strength ethanol, और तो ये बताया गया कि हमें ये अल्कोहल का जो कंसेप्ट आया था कि अल्कोहल पीने वाले लोग जो होते हैं, अल्कोहल से हैंड सैनिटाइज करना है, उसको पीना नहीं है। ठीक है, वो पियोगे तो आपका इम्यून सिस्टम और खराब कर देगा। ठीक है, तो ये सारी अफवाहें हम लोगों ने देखी। अब आप आज जो है अब देखते हैं इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं एक क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, आप लोग मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू है, आपका लेक्चर जो था उतना ही था, अभी इसके ऊपर मैंने एक एमसीक्यू बना रखा है, उसको देखते हैं एंड फाइनली वी वाइंड अप द क्लास। ए कोविड-19 वैक्सीन विल हैव ए माइक्रोचिप एम्बेडेड विद इट। जो कोविड-19 की वैक्सीन आती है उसके ऊपर कोई माइक्रोचिप लगी हुई होती है। इट्स ट्रू और फॉल्स? नो सर, नो सर, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। वैक्सीन कैन चेंज योर डीएनए। जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं उससे हमारा डीएनए वो चेंज हो रहा है। नो सर, नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स सर। ए कोविड-19 वैक्सीन कैन कॉज इनफर्टिलिटी। क्या ये इनफर्टिलिटी करता है कोविड-19 वैक्सीन? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये इनफर्टिलिटी, इसका कोई लेना देना ही नहीं फर्टिलिटी से, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बी सर, नो, फॉल्स सर। एवरीवन शुड गेट कोविड-19 वैक्सीन। सबको कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए, यस और नो? यस सर, यस सर, ट्रू। कोविड-19 वैक्सीन गिव यू कोविड-19। जो कोविड-19 वैक्सीन लगवा रहा है उसको कोविड-19 हो रहा है, यस नो सर, फॉल्स। ये भी अफवाह है, तो ये फॉल्स है, गलत है, मना करो ये। अरे हम तो अपने
हमने पढ़ लिया, हमने लेक्चर के अंदर कि सर ने बताया था, अभय सर ने कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सारी अफवाहें पता है हमें, कौन कौन सी अफवाहें फैलती है। तो कोविड-19 वैक्सीन लगाने से कोविड-19 नहीं होता है, अब आपको पता है इसलिए आप मुझे बता रहे हो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वेरी गुड। People still need to wear a mask after receiving the COVID-19 vaccine? Yes, sir. लगानी चाहिए। कोई बोलेगा लगाने चाहिए सर, वैक्सीन लगवा रही है, मेरे को जरूरत ही नहीं है अब आगे मास्क पहनने की, तो गलत, उसको बताओ अरे भैया आपने अगर वैक्सीन लगवा रही है तब भी मास्क पहनो, आपके और आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए। तो ये ट्रू है, मास्क से तो बहुत फायदा है ना सर। So with this, we have finished your today's lecture on truth and myth on regarding COVID-19. I hope you all guys have learned a lot from this particular lecture. आपको कुछ सीखने को मिला हो आज इस लेक्चर से, यही उम्मीद है मुझे। So with this note, I am winding up the class and we'll meet up in your next class. Okay guys, take care, stay safe. Bye bye.